Yes, so we have started the topic. We are doing discussion of the topic here. Here. And in here, what we have discussed till now about air pressure. We have discussed in air pressure, and before that, what we have discussed before air pressure about temperature, weather, and climate. Okay. Yes, who else will tell what we have done in this topic? Yes, beta. Structure of air and weather and climate. Temperature. Okay. Sit down. So we have discussed about composition of our atmosphere. Okay. What are the various gases? What is their importance? Then the structure of atmosphere, different layers in it, and their importance. Okay. And the weather phenomena, which it happens in which layer? Weather phenomena happens in which layer? In troposphere. What is the first layer of our atmosphere? And above troposphere, which layer? Above stratosphere, above mesosphere. And what is the outermost layer of our atmosphere? Exosphere. And what is the, at which height there is tropopause? 10 to 13 kilometers. Sit down. And which gas is important gas for creating greenhouse effect? Carbon dioxide. Okay. So all the weather phenomena, it happens in which layer? Troposphere. Okay. And in what is the difference between weather and climate that we have discussed? Weather are the changes in atmosphere from day to day and from hour to hour. Okay. And climate, the average weather conditions over a particular place during a long period of time. Okay. And then in weather, if you find the information, then you will get the information of temperature. What is temperature? What is air pressure? What is wind? Have you seen? Search out for the weather conditions, the climate, weather of day and night. What information is given about weather? About, yes. What information is given about weather? क्या हुआ इससे कुछ नहीं होता अभी लगाओ यू आर नॉट टच योर लेग्स ये लेग्स को टच नहीं करता सिट डाउन आई से लाफ हो यू टेक इट वेरी सीरियसली So take care of it. So what you have observed in these weather conditions? Temperature is given, then air pressure. If rainfall, then precipitation. What will be rainfall? How much will be rainfall? It is also given. Okay, so different information you can get from these weather conditions. So temperature, then in weather and climate, first we will talk about temperature. So what is temperature? Temperature is the hotness or coldness we feel in our atmosphere. Okay, it can be in degree, so we measure in degree. Degree किसकी होती है? In Celsius. Okay, how much temperature, more temperature will be more hot,
less temperature means cold. ठीक है? So the temperature, it varies from one place to another. What is the reason of temperature being different from one place to another? If we talk about our Earth, so at equator the temperature is more than the polar regions. Why it is so? What can be the reason? Because of insolation. ये हमने एक much word insolation. So what is insolation? Insolation is the incoming solar energy. ठीक है? The solar energy that is coming to our Earth and that is intercepted by our Earth. Intercepted means absorbed by our Earth. Okay, so that inner solar energy. So the more the direct sun rays that falling on equator, so more insolation will be here. Insolation, the heat of the sun that is absorbed by our Earth, intercepted by our Earth. More insolation will be at equator areas and less insolation will be here in the polar areas. Clear? Why there will be less? Because there are slanting rays coming to the polar regions. Okay? And more heat will be here because direct rays are. So more insolation is taking place. More insolation means more temperature. Temperature is ज़्यादा होगा. If we will move towards equator, then insolation will be less. So and same the degree of temperature. यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ टेम्परेचर कम होगा. यहाँ इंसुलेशन ज्यादा है, यहाँ इंसुलेशन कम होगा. ठीक है? So the amount of insolation, it decreases from equator to polar regions. What is insolation? Insolation is an important factor that describes the temperature of one particular place. And that insolation, what is insolation? The incoming solar energy that is intercepted by our Earth. So amount of insolation decreases from equator to poles, therefore the temperature also decreases in the same manner. More temperature is there at the equator and less temperature is there at the polar regions. So now polar regions, that is why they are covered with snow. These polar regions mostly they are covered with snow because there is less insolation. And in the urban areas there is more insolation because due to the buildings, concrete, metals, all the things that has been used to making the buildings, and they are thickly populated also, and more heat is retained by these all metals and buildings. And in the contrast, in villages, insolation will be less. Okay? The local temperature will be more in urban areas than the rural areas. So temperature in cities is much higher than that of villages. The concrete and metals in buildings, and they get heated up during the day, and the heat is released during the night. They are keeping the earth warm at night also. Okay? So the crowded high-rise building, they trap the warm air and raise the temperature in cities. और cities का temperature ज़्यादा होता है, urban areas का temperature थोड़ा कम होता है. If you have visited any village, then you may have feel the difference in temperature from urban areas and rural areas. ठीक है? Then the air pressure. अब फिर इसी में और next phenomena, weather. These are weather phenomena. The weather phenomena which are happening in troposphere. The next comes the air pressure. Yes. हाँ जी बेटा. किसी एक प्लेस में टेम्परेचर ज्यादा क्यों है? सिटीज में, क्योंकि सिटीज क्राउडेड. अगर हम लोकल टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, सिटीज में जैसे डे टाइम में, जहां पर विलेजेस में क्या, विलेजेस में नेचुरल प्लांट्स हैं, ठीक है, ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं है, ज्यादा रोड्स नहीं है, ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, पोल्यूशन ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो देन देयर टेम्परेचर विल बी लेस. और उसके बाद
अर्बन एरियाज में क्या है, बिल्डिंग्स है, रोड्स है, कंक्रीट, मेटल मटेरियल्स बहुत यूज हुआ है, तो दे आर मोर अब्सॉर्बिंग मोर हीट एब्सॉर्ब कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर रिलीजिंग आल्सो द मोर हीट, इसलिए वहां का थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होता है. You will feel more hot in the cities than in the urban area, rural areas. ठीक है? So air pressure. So there is air pressure also in our air. हमारी एयर में एयर प्रेशर भी है. If that you know that air is having weight, air का weight होता है, ठीक है? So the weight of air is causing pressure on the surface of air. तो जो एयर का वेट है वो हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या डाल रहा है, प्रेशर. ठीक है, द एयर प्रेशर, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन आवर सरफेस ऑफ अर्थ. कि हमारी अर्थ के सरफेस पे जो एयर हमारे ऑल राउंड है वो क्या कर रही है, वेट डाल रही है. ठीक है, सो वेट इज बीइंग एक्सर्टेड. So as we go up, और जैसे जैसे हम अपनी लेयर्स में एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे, then the air pressure will be less. More air pressure कहाँ है, at the sea level. Sea level पे ज्यादा एयर प्रेशर है. And then जैसे अब हमें फील नहीं होता एयर प्रेशर, we are not feeling एयर प्रेशर. कब फील होता है हमें एयर प्रेशर, when we feel air pressure more, when on the stormy day, जब when fast winds they are blowing, स्टॉर्मी डे है तो वहां पे बहुत अगर फास्ट स्टॉर्म कोई हम कर रहे हैं फेस, तो तब हमें ट्रीज आर, वी आर सीइंग द ट्रीज आर आल्सो मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ विंड. ठीक है, तो इस तब हम विंड्स को मूव करते हैं. कई बार अगर आप साइकिल चला रहे हो, इफ द फास्ट विंड्स आर ब्लोइंग फ्रॉम योर फ्रंट एंड यू आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यू आर मूविंग साइकिल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन यू हैव टू गिव मोर प्रेशर. ठीक है, यू हैव टू एक्सर्ट मोर प्रेशर फॉर योर साइकिलिंग. साइकिल के लिए आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप उसी डायरेक्शन में, अगर तो जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो फिर तो नहीं लगाना पड़ेगा. लेकिन अगर विंड्स आर ब्लोइंग फ्रॉम सामने से आपकी तरफ आ रही है एंड यू आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन आपको ज्यादा जोर उसमें लगाना पड़ेगा. ठीक है, देन यू आर फीलिंग द एयर प्रेशर कि हाँ एयर का प्रेशर आ रहा है. ठीक है, सो एयर प्रेशर इज द वेट ऑफ एयर that is being exerted on the surface of air. ठीक है, और हमारी बॉडी अगर नॉर्मल हम यहाँ पे खड़े तो हमें वो फील क्यों नहीं हो रहा है एयर प्रेशर, बिकॉज उस एयर, वो एयर प्रेशर की जो जितना एयर प्रेशर नॉर्मल है, सेम एयर प्रेशर आवर बॉडी इज आल्सो एक्सर्टिंग. हमारी बॉडी में भी ब्लड प्रेशर है. ठीक है, तो दैट हमारी बॉडी में भी प्रेशर है, तो वो दोनों का क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है. ठीक है, बट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स दे आर गोइंग टू द मून, देयर इज नो एयर प्रेशर, वहां पे कोई एयर प्रेशर नहीं है. ठीक है, सो दे आर वियरिंग स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द एयर प्रेशर, ताकि वहां पे वो, क्योंकि वहां पे तो एयर प्रेशर है ही नहीं है, इसलिए वो स्पेस सूट डालते हैं ताकि वो उनका बैलेंस बना रहे. क्योंकि अगर एयर प्रेशर, हमारी बॉडी का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बाहर एयर प्रेशर कम है, तो क्या होगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी. जैसे कई बार नोज ब्लीड करना भी शुरू हो जाता है, ताकि उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी का प्रेशर ज्यादा हो जाता है. ठीक है, तो वो बॉडी का प्रेशर जो ब्लड इधर बाहर अपने आप आ जाता है. ठीक है, तो इसीलिए वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेस सूट डालते हैं ताकि उनका जो बैलेंस है वो रह सके. सो इन द एरियाज द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल. एयर प्रेशर हाईएस्ट कहाँ पे है, सी लेवल पे, एंड इट इज डिक्रीजेस विद द हाइट. और जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. So horizontally the distribution of air pressure, तो अगर हम horizontally बात करें तो air pressure it is influenced by the temperature of air at a given place. तो वहां का टेम्परेचर कैसा है इस पे डिपेंड करता है. ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, एक प्लेस का टेम्परेचर कैसा है उस पे डिपेंड करता है कि वहां का एयर प्रेशर कैसा होगा. अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, इफ द एरिया देयर इज हाई टेम्परेचर, अगर एरियाज जहाँ पे हाई टेम्परेचर है तो वहां पे एयर कैसी होगी, हॉट और कोल्ड. व्हिच एयर विल बी देयर, कोल्ड. हाई टेम्परेचर है, हॉट. हाई टेम्परेचर जैसे कि हमने डिस्कस किया था 33 डिग्री हाईएस्ट है और 10 डिग्री लो है. तो
अगर हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा वहां पे, हॉट एयर होगी, एयर विल बी हॉट, ठीक है, हॉट एयर होगी। और हॉट एयर क्या होती है, लाइट, और वो किधर राइज करेगी, ऊपर। तो हॉट एयर अपवर्ड राइज करेगी, तो वहां पे प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर, है ना। तो हमारी एयर का प्रेशर कैसा होगा, लो। और अगर वही एरियाज लो टेम्परेचर है, अगर लो टेम्परेचर है तो वहां पे एयर कैसी होगी, कोल्ड एयर, है ना। तो एयर क्या होगा, वो इट विल सिंक डाउनवर्ड्स, वो डाउनवर्ड्स इकट्ठा होगी, ठीक है। सो in the areas where temperature is high, the air gets heated and rises, it gets heated and rises. And the areas where temperature is low, then air is cold and it is therefore heavy, sinks and creates a high pressure. Yes, okay Akrit, ठीक है, clear now कि areas where there is high temperature, air will be cold, ठीक है, and cold air sinks and creates, और वहां पे प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर ऑफ द एयर, यहाँ पे हाई एयर प्रेशर, हाई टेम्परेचर, hot air and the pressure of air will be low, so low air pressure है, and यहाँ पे low temperature है, high temperature low है, but air pressure is high due to the cold air that is sinking downwards, ठीक है। And now air always moves, अब air की movement, अब air जो है वो एक जगह खड़ी नहीं रहती, it is always moving, ठीक है। अब ये कहां से कहां मूव करती है, it is moving from high pressure to low pressure area। अब ये air जैसे we have done one example of AC, you are sitting in AC room, if you have opened the door, then which air will go out and which air will come in, cold air will go out and hot air will come in, it means first cold air, अंदर कौन सा हाई प्रेशर था, बाहर कौन सा एरिया था, लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर एरिया फ्रॉम एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। पहले तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की तरफ मूव की ना, पहले ये तो नहीं कि अंदर हमारी कोल्ड एयर वही वही की वही है तो हॉट एयर भी आगे इकट्ठा होगी, ऐसा नहीं होगा। पहले अंदर से वैक्यूम होगा, बाहर जाएगी, स्पेस खाली होगी, तभी हॉट एयर अंदर आएगी, है ना। सो पहले कोल्ड एयर इट इज मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज, और ये क्या बन जाती है, दैट विंड। नेक्स्ट जो आपका इसमें वेदर फिनोमेना है, नेक्स्ट इज द विंड। एयर प्रेशर creating high pressure areas, low pressure areas, it is depending on the temperature. If the high temperature is there, air pressure will be low, if the low temperature is there, air pressure will be high, okay. And the wind means movement of air from high pressure area to low pressure area, so this is wind. So when you will feel this wind, ये जो विंड ब्लो कर रही है आपको फील कब होती है, ऑन द स्टॉर्मी डे, ठीक है। अगर कोई स्टॉर्मी डे है तब आप इसको फील कर सकते हो। देन व्हेन द विंड ब्लोस यू कैन सी ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट, कई बार आपको स्मोक या डस्ट पार्टिकल भी इसके साथ ब्लोइंग करती हुई यू कैन सी, ठीक है। और इफ ऑन ए रेनी डे और विंडी डे यू कैन सी द अम्ब्रेला, दैट इज ऑल्सो it's not easy to hold because it is also moving with the wind, ठीक है, वो भी उसके साथ मूव कर रही है। So you maybe any experience that you have gone through of this wind, blowing of this wind. So wind always move from high pressure area to low pressure areas. So now there are three types, mainly three types, ठीक है, जो हमारी अर्थ में मेनली हमने 3 टाइप्स की जो विंड है दैट वी हैव डिवाइडेड। सो अर्थ को हमने वेरियस जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट इसमें विंड्स हैं
now we are discussing wind. What is wind? It is the movement of air from high pressure area to low pressure areas. Yes. ठीक है. And then what are the three various types of wind? First है इसमें permanent, ठीक है, then seasonal और फिर then local. ठीक है. Three types of winds are there. Permanent winds, जैसे नाम से ही क्लियर है कि they are permanent. ठीक है. They are permanently blowing in one direction. ठीक है. परमानेंटली उनकी जो डायरेक्शन है एक परमानेंट है, वो उसी डायरेक्शन में हमेशा मूव करती हैं. और हमें पता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ विंड. डायरेक्शन कैसी होती है? फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर. जैसे यहाँ पे कौन सा प्रेशर एरिया क्रिएट होगा इक्वेटर रीजन में? इक्वेटर रीजन में कौन सा प्रेशर एरिया होगा? लो प्रेशर, बिकॉज इंसोलेशन इज मोर. यस, हाँ जी भव्या, ठीक है, लो प्रेशर. और विच प्रेशर एरिया इज देयर एट पोलर रीजन्स? हाई प्रेशर एरिया. तो मींस हाई प्रेशर एरिया से विंड किधर ब्लो करेगी? टू द लो प्रेशर एरिया. ठीक है. लेकिन इन बिटवीन यहाँ पे क्या है? सब रीजन्स भी हैं. ठीक है. यहाँ पे सब पोलर रीजन है. सब पोलर रीजन में लो प्रेशर है. देन देयर आर ट्रॉपिकल रीजन्स. ट्रॉपिकल रीजन में तो लो प्रेशर है. जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे हाई प्रेशर है. तो इसलिए अलग अलग यहाँ से जैसे मूवमेंट इधर को है विंड्स की, ठीक है, ये मूवमेंट इधर को है. सेम यहाँ से विंड की मूवमेंट इधर भी है टू द सब ट्रॉपिकल रीजन. देन फ्रॉम पोलर रीजन टू दी सब पोलर रीजन. तो डिफरेंट मूवमेंट विंड्स. तो ये डायग्राम में है आपकी बुक में. ठीक है. ऑफ these are all are permanent winds. ये सारी परमानेंट विंड्स हैं. ठीक है. ये डायग्राम भी आपको बनाना है. ठीक है. ट्रेड विंड्स. अब इसमें कौन कौन सी विंड्स हैं? जो ट्रेड विंड्स हैं, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ये सारी क्या है? परमानेंट विंड्स. इनके नाम है विंड्स के. ठीक है. जो अलग अलग, जो ईस्ट डायरेक्शन से विच विंड ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट विंड नेम उसका क्या होगा? विच विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उसका नाम क्या होगा? वेस्टर्लीज. ठीक है. मतलब जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है उसी डायरेक्शन पे उसका नाम होगा. एंड द विंड विच इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दैट विल बी ईस्टर्लीज. जो वेस्ट से ईस्ट जा रही है वो वेस्टर्लीज. जो ईस्ट से वेस्ट जा रही है दैट इज ईस्टर्लीज. ठीक है. सो ये इनके नेम है, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज एंड ट्रेड विंड्स. तो ये सारे इन परमानेंट विंड्स के नेम हैं. ठीक है. देन सीजनल विंड्स. अब सीजनल विंड्स क्या है? वो एक पर्टिकुलर सीजन में है. जैसे देयर आर डिफरेंट सीजन. ठीक है. देयर आर हॉट सीजन ऑल्सो, देयर आर कोल्ड सीजन, देयर आर मॉनसून सीजन. डिफरेंट सीजन्स है. तो डिफरेंट सीजन्स में द विंड्स दे आर ब्लोइंग, दे आर डिफरेंट. वो सारी डिफरेंट विंड्स ब्लो कर रही हैं. ठीक है. तो वो हो गई सीजन वाइज. तो वो सीजन वाइज ब्लो करती है, वो परमानेंट नहीं है. एंड सम देयर आर आल्सो लोकल विंड्स. लोकल कैसी हैं? जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही है बस. ठीक है. वो एक रीजन से दूसरे एरिया में मूव नहीं कर रही, वो उस पर्टिकुलर एक एरिया में, लोकल एरिया में ही है. ठीक है. जैसे कि स्मॉल एरिया, जैसे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज. लैंड ब्रीज, सी ब्रीज की हुई है. व्हाट इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज? यस, रेज योर हैंड. हाँ जी बेटा. During the sea breeze blows from which direction to which direction, or from where to where? Sea breeze from sea or from land? Sea breeze from sea to land, and land breeze from land to sea. ठीक है. Sit down. So sea breeze and land breeze. हाँ जी आकृति. Yes बेटा.
I wanted the answer, but sea breeze and land breeze. Yes. A local wind system characterized by a flow from land to water late at night is called land breeze. Okay, your voice is not properly coming, beta. So sea breeze that is blowing from sea towards land, and land breeze that is blowing from land towards the sea. Okay, why it happens? Because it happens due to the pressure area which is created there. ठीक है, जैसे हमने हमेशा कहा कि wind is blowing from high pressure area to low pressure area, and during the day where will be low pressure, on the sea or land near to the sea, where will be high pressure and low pressure. Yes, suppose this is, you can see sea, okay, and land. So where will be the low pressure and high pressure during the day? Because it means sea breeze, land breeze, the breeze is different during the day and it is different during the night, है ना? So that is why sea breeze and land breeze हमने name दिया है. So why during the day breeze is moving from, during the day the wind is moving from, आपको भूल गया होगा, है ना? Okay, so during the day sunlight is coming and land will get hot quickly than the sea. Land jaldi garam ho jayegi than the sea. And where will be the low pressure? On the land. On the land there will be low pressure during the day. Then breeze will blow from sea to land. And because land it was hotter during the day. और नाइट में क्या होगा? नाइट में बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी. नाइट में लैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, बट सी उसका ज्यादा वो गर्म भी लेट से होगा और ठंडा भी देर से ही होगा. ठीक है, अगर जैसे अगर आपने बाहर ग्राउंड है तो ग्राउंड में जमीन पे अगर आपने पानी का टप रखा है तो पानी का टप जो है इट विल नॉट गेट हॉटर इतनी क्विकली जितनी कि वो ग्राउंड गर्म हो जाएगी. जो ग्राउंड है वो जल्दी गर्म होगी देन दैट टप ऑफ वाटर, है ना? तो सेम इज द कंडीशन हियर. लैंड गर्म भी जल्दी होगी एंड इट विल कूल डाउन आल्सो क्विकली. तो इसी तरह डे टाइम हियर इज लो प्रेशर एंड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड, एंड एट नाइट देयर इज हाई प्रेशर एंड द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी. क्लियर? ठीक है, तो ये क्या है? ये सिर्फ लोकल की लोकल विंड्स इस तरह चल रही है. ठीक है, देन सीजनल, सीजन में एक पर्टिकुलर सीजन में डायरेक्शन उस सीजन में उसी डायरेक्शन में मूव करती रहती है. ठीक है, और परमानेंट, वो तो परमानेंट एक उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है कि वो परमानेंट उसी डायरेक्शन में मूव करती हैं. जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती हैं दे आर ईस्टर्लीज, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती हैं दे आर वेस्टर्लीज. ठीक है, दे डिफरेंट डायरेक्शंस. तो दिस डायरेक्शन डिस्कशन ऑन द विंड्स. और इसके बाद एक साइक्लोन की बच्चे केस स्टडी है दैट यू विल रीड. ठीक है, वी विल डिस्कस इट टुमारो. एनी डाउट फ्रॉम टेम्परेचर, एयर प्रेशर? The discussion on wind that we will continue. Any doubt from the temperature and air pressure? Yes. What is low pressure area? How low pressure area is created? How high pressure area is created? Yes. It depends on the temperature of that place. If there is high temperature, अगर वहां पे temperature high है, it means air will be hot. एयर हॉट होगी, इट विल राइज अबव, वो ऊपर जाएगी. वहां पे एयर का प्रेशर, एयर प्रेशर है क्या? वेट ऑफ एयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. जो एयर का वेट हमारी सरफेस के ऊपर प्रेशर डाल रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? एयर प्रेशर. अब हॉट एयर तो राइज ऊपर जा रही है तो वहां पे प्रेशर कौन सा होगा? लो प्रेशर होगा. अब यहाँ पे लो टेम्परेचर है
पहले टेम्परेचर लो था, जैसे कि सन हीट यहाँ पे ज्यादा तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ सन हीट कम है तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया, यहाँ पे लो प्रेशर एरियाज, यहाँ पे हाई प्रेशर एरियाज। तो ये जनरल हमने बात की, ठीक है। सो हाई प्रेशर एरिया कहाँ पे होता है? व्हेन देयर इज लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में क्या होगा? एयर विल बी कोल्ड, इट विल बी सिंक डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो वो डाउनवर्ड सिंक होगी क्योंकि वो हैवी हो जाएगी, ठीक है। एंड देन हाई प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड, और एयर का प्रेशर कैसा होगा? वेट ऑफ एयर, प्रेशर थ्रू exerted through the weight of air on the surface of air, there will be more. तो high pressure होगा. Now it is clear where will be the high pressure and where will be the low pressure, and where will be the movement of wind from high pressure area to lower pressure area. जो wind की movement है वो कहाँ से कहाँ होगी? From high pressure to low pressure area. This thing is clear? Yes, beta? Yes, any doubt till now? Okay, so go through this topic. इसके बाद जो साइक्लोन की केस स्टडी है वो आपने इसको थॉरली स्टडी करना है, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द विंड, जो विंड की मूवमेंट है उसी से रिलेटेड है ये साइक्लोन की स्टडी, ठीक है, कि हाउ द एयर विंड्स आर मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, और किस तरह ये साइक्लोन में कैसे ये साइक्लोन यहाँ पे आया और कैसे इसने डिस्ट्रक्शन कॉज की। ओके, सो नाउ फर्स्ट टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय टेम्परेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर? हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर? यस बेटा, हाँ जी, no, that is the weather, atmospheric condition that changes from hour to hour, day to day. Yes, temperature, yes Suhana, degree of hotness and coldness in the atmosphere. और hotness और coldness हम measure कैसे करते हैं? in degrees, ठीक है। और degrees की हमने standard unit क्या रखी है? सेल्सियस, ठीक है। डिग्रीज में हम मेजर करते हैं इन सेल्सियस। ओके, देन व्हाट इज एयर प्रेशर? What is air pressure? Yes, air pressure. Pressure exerted by weight of air on the surface of earth. ठीक है? So we will continue this discussion. Okay, thank you, beta. Take care.